welcome to Birdcode Community Podcast series. Uh, Today we have Tarun Josh sir with us, and I am very excited to discuss especially about UI UX design. So let's start. First of all, welcome you, sir. Thank you. Nice Thank you to very meet much. you. Hello, everyone. Nice to Uh, meet you too. So before going forward, I like to share something about sir. He's a product designer at Lenskart.com. Before going, he has 8 years of experience, well far at designing part. And if you want to look out about its background, so you should visit his LinkedIn profile, where he has shared amazing journey. I have read it, sir, about section there, and you had done really amazing there. Yeah. Thank you. So, sir, सबसे पहला सवाल मेरी तरफ से ये रहेगा कि what is UI और UX design? Okay. Interface is UI stands for user interface. UX stands for user experience. So interface is what you see. Like for example, आपका phone में जो screen दिखता है ना, that is interface. Like you can tap on it. It is something through which you can interact with the machine. So जैसा आपको किसी machine से interact करना है तो not on the physical phone itself, like any machine को भी ले लो, किसी को भी ले लो. In order to interact with the machine you have an interface. For example, car को drive करने के लिए आपको steering की जरूरत पड़ती है. Steering is kind of a physical hardware kind of interface. So interface something is where you communicate your ideas to the machine, and which you can see and touch and give commands using that. ठीक है. तो ऐसा बहुत इंटरफेस था. GUI अभी यूज कर रहे हैं. इससे पहले अभी भी वॉइस इंटरफेस है, जैसा आप री से बात कर रहे हैं, दैट इज अनदर इंटरफेस. ऐसा बहुत सारे इंटरफेस. सो इन डिजिटल वर्ल्ड वी कॉल इट, लाइक क्योंकि स्क्रीन पे दिखता है इसको यूजर इंटरफेस. लाइक नॉर्मली किसी चीज को भी इंटरफेस ही बोलते हैं. So UI UX design is not just related to mobile app design करना, web app design करना, ऐसा नहीं है. Interface and experience design is always is there in almost like everywhere. In every product we design, there is like a interface, like especially machinery interface तो जरूर रहता है. ऐसा है. So digital, just for the sake of the popularity, भी थोड़ा पॉपुलर है, इसीलिए अपन स्क्रीन्स के बारे में करते हैं. सो जो स्क्रीन पे आपको दिखता है वो आइकन है, वो सब इंटरफेस है. सो एक्सपीरियंस क्या है? फॉर एग्जांपल, आप कभी किसी लाइक बाइक ड्राइव किया हो. एक बाइक ड्राइव कर कुछ बाइक में अच्छा फीलिंग आता है, कुछ बाइक में खराब फीलिंग आता है. लाइक यू फील, उसका मजा अलग है. और रोना चला रहे हो तो उसका मजा अलग है. सो उन दोनों में हाउ यू फील अबाउट इट. सो अगर किसी चीज को यूज कर रहे हो, आप कैसा लग रहा है उसको यूज करने के बाद, इसी चीज को हम डिजिटल वर्ल्ड में ले आते हैं. And let us say it is like Amazon use कर रहे हैं. Amazon का experience is really good, right? Like when you order a product, उसका returns भी जल्दी हो जाते हैं, and product भी जल्दी आ जाता है, quality अच्छा रहता है, service अच्छा है. Overall the experience is really good. So that is user experience. और थोड़ा इसको filter करेंगे, डीप डाइव जाएंगे, तो अभी के कॉन्टेक्स्ट के लिए जो डिजिटल लोगों को जो पता है, जैसे मोबाइल ऐप्स वेब ऐप्स डिजाइन करते हैं, उन लोगों को जो चीज पता है, that is basically making sure your user is able to use the application in such a way so that he doesn't face any issues and he feels good after finishing and using the application. ऐसा है. So that is the difference between interface and experience design. ये like both the people do it like that. So okay, like there recently अभी थोड़ा और bifurcation हो रहा है.
इट्स लाइक इंटरफेस के लिए विजुअल डिजाइन के लोग कर रहे हैं, एक्सपीरियंस के लिए यूएक्स सेपरेट हो रहा है. But before it was same, so that evolved from web design, graphic designing, ऐसा धीरे धीरे evolve होता है. But overall, if you take it, user interface and experience is not just related to digital world, it's everywhere. ओके. Okay. अभी जैसे मार्केट में बहुत सारे डिजाइनर है एज पर द कंपनी, हर अलग अलग लेवल पे. तो अगर आप ऐसे डिजाइनर एज अ डिजाइनर मार्केट पे जाते हो तो कितने फील्ड्स आपके पास है एज अ डिजाइनर? बहुत सारे say like if you take like a specific design आप सिविल इंजीनियर भी एक तरीके के डिजाइनर ही है, राइट. एंड देयर आर सो मेनी अदर वेरिएशंस, फैशन डिजाइनर भी डिजाइनर है. लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट आईटी, तो फिर आईटी. आईटी प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो बना रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारे रोल्स है. जो इट स्टार्ट फ्रॉम जूनियर इंटरफेस विजुअल डिजाइनर, फिर एक्सपीरियंस डिजाइनर, इंटरैक्शन डिजाइनर, फिर उसके बाद सर्विस डिजाइनर है, ऐसा बीएक्स ब्रांड एक्सपीरियंस डिजाइनर, ऐसा बहुत सारे रोल्स मिलेंगे आपको. उसके ऊपर धीरे धीरे क्रिएटिव डायरेक्टर, सीनियर डिजाइनर, फिर प्रोडक्ट डिजाइनर, ऐसा बहुत सारे रोल्स आपको अलग अलग मिलेंगे. बट जूनियर यूआई यूएनर रोल ज्यादा मिल सकता है, तो जूनियर प्रोडक्ट डिजाइनर, विजुअल डिजाइनर also if you're more into visual kind of design, ऐसा. मैं फिर से वापस आता हूँ यूआई यूएक्स पे. अगर हम यूआई यूएक्स की बात करें तो आपका फेवरेट इन दोनों में से कौन सा है? मतलब एक स्पेसिफिक जो आप रेगुलर यूज करते होंगे. मैं तो दोनों यूज करता हूँ. हाँ, अभी थोड़ा जा यूएक्स पे फोकस जा रहा है मेरा, क्योंकि इंटरफेस इज लाइक ए ट्रेंड, यू हैव टू चेज इट. तो इंटरफेस जो है हर बदलता है, नया आता रहता है, एंड यू हैव टू चेज द ट्रेंड. यू है उसको आपको सॉल्यूशन देना है. सो दैट इज more like you have to use multiple things. Interface ही नहीं, you also have to use your logical thinking, सर्च को यूज करना पड़ेगा, अलग अलग चीजों को यूज करके देन वर्किंग और नॉट. तो करंटली मेरा तो ज्यादा फोकस यूएक्स में ही है, यूआई में भी है बट थोड़ा सा कम है. अभी मैं जैसे फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ या फिर एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात करें जो अभी ग्रेजुएशन करने जा रहा है या फिर अभी ग्रेजुएशन ईयर में है, अगर उसे यूआई यूएक्स डिजाइनर या फिर और भी डिजाइनर फील्ड में कुछ बनना है तो उसके लिए एक होल प्रोसेस क्या होगी? मतलब फर्स्ट स्टेप उसका क्या रहना चाहिए? एक आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. मैं चैट में एक लिंक पेस्ट कर रहा हूँ, वो लिंक में जाओ, अपना साइन अप करो, फिर आपको यूआई यूएक्स डिजाइन का कोर्स मिलेगा. वो पूरा 100% फ्री है. आप जाके वो कोर्स ले लो. आपको यूआई यूएक्स डिजाइन, उस मेरा ही कोर्स है, उसमें सब कुछ मैंने सिखा दिया है ए टू जेड. आपको प्रिंसिपल से लेके इंटरफेस, इंटरेक्शन कुछ है. तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने जब किया है मुझे तो बहुत लग गया उस पूरा कोर्स जैसा बना दिया. ओके, तो सर ने जो अभी लिंक प्रोवाइड की है मैं उसे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शंस में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ जाके एक्सेस कर सकते हो. इसके बाद अभी जो रिसोर्सेस हैं मार्केट में अदर देन आपका सिलेबस या फिर आपके कोर्स, तो नॉर्मली अगर किसी को रेफर करना होगा तो फिर आप क्या सजेस्ट करोगे अदर देन आपके कोर्सेस? अगर ऐसे किसी बहुत को सारे कुछ बुक्स है. बुक्स, आप हाँ बुक्स या फिर ऑथर्स. या
बुक्स आप पढ़ सकते हो। फर्स्ट बुक आप पढ़ना चाहिए, डॉन नॉर्मन में लिखे हाउ, बुक का नाम क्या है, थिंग्स। एक बुक है चेंज बाय डिजाइन बोल बुक है, वो भी आप पढ़ सकते हो। फिर स्प्रिंट का एक बुक है, वो भी पढ़ सकते हो। Those are all interesting books। आप वो पढ़ के और ज्यादा इंफॉर्मेशन। एक और बुक है, ये एक और इंटरेस्टिंग बुक है, आप वो भी पढ़ सकते हो। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स से आप बहुत ही नॉलेज गेन कर सकते हैं इनसे। सर अगर कोर्स कंटेंट की बात करें तो कोर्स कंटेंट में स्पेशली हमें किस चीज पे फोकस करना पड़ेगा एज अ डिजाइनर? मतलब ये चीज काफी ट्रेंडिंग है और इस चीज पे ज्यादा फोकस दिया जा रहा है मार्केट में। कोर्स कंटेंट और मार्केट फोकस, देखो आपको, बिकॉज यू आर ए बिगिनर राइट, आई वुड रिकमेंड कि आप अभी से ही नीश में जाने की कोशिश मत करो। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, वैसे बहुत सारे लोग नीश में जाने को बोलते हैं, बट मेरा ये है, सो यू हैव टू बी मास्टर ऑफ वन एंड जैक ऑफ ऑल। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक चीज बहुत अच्छे से आना चाहिए, बाकी चीजें में थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए। सो अभी इफ यू टेक लाइक स्पेसिफिकली कोर्स में तो सब कुछ है आपको, लाइक बहुत सारे चीजें हैं। जैसा रिसर्च वाला पार्ट है, यूएक्स रिसर्च भी एक रोल मिलता है मार्केट में। फिर रिसर्च के बाद आपको है इंटरफेस डिजाइन, इंटरफेस डिजाइन के बाद इंटरेक्शन डिजाइन है, ऐसे लाइक एवरीथिंग इज देयर इन दैट। सी more than anything my focus would be on learning how to build solutions। एक प्रॉब्लम आपको दिया गया है, उसका सॉल्यूशन कैसा आप बनाओगे इज लाइक मोर फोकस। तो आपको सब कुछ सीखना चाहिए, फिर धीरे धीरे जाके आप खुद अपना नीश फाइंड कर लोगे। अभी मार्केट में तो यूआई यूएक्स डिजाइन, जैसा अगर स्टार्टअप को लोगे, इफ यू टेक स्टार्टअप, स्टार्टअप expects one person to know like multiple things so that they can use your multiple skills, right? अगर आपको यूआई भी पता है, यूएक्स भी पता है, एक्शन भी पता है, तो स्टार्टअप में आपको बहुत अपॉर्चुनिटी है। एंड स्टार्टअप इज अ प्लेस वेयर यू शुड स्टार्ट योर करियर। दैट इज रिकमेंडेशन। आपको एमएनसी में जाना है, वहां पे जाकर कुछ नहीं सीखोगे, टाइम वेस्ट है पूरा, बस ब्रांड है, मगर काम नहीं सीखोगे इतना ज्यादा। बट देर आर लाइक सम स्पेसिफिक रोल्स that will definitely give you some opportunity to learn more in bigger companies also, but वो eventually धीरे धीरे आपको बड़े experience के हिसाब से आपको वैसे roles मिलेंगे, and there you can do more। वहाँ पे बड़े companies में you do things on a scale, बड़े बड़े स्केल में करते, स्टार्टअप्स में छोटा स्केल में करोगे, बट यू विल हैव लाइक एक्सपोजर टू सो मेनी थिंग्स। इसीलिए आपको पहले नीश ऐसा कुछ मत देखो, पूरा ही सीखो, फिर जाके धीरे धीरे नीश में जाओ एंड फोकस मोर ऑन द सॉल्यूशनिंग पार्ट। इंटरफेस तो वो हर दिन कैसे लाइक 10 डिजाइन है, आप 10 डिजाइन को मिला के एक नया डिजाइन बना सकते हो इंटरफेस में, बट एक्सपीरियंस में क्या होता है, सॉल्यूशनिंग पार्ट में हर प्रॉब्लम यूनिक होता है, हर प्रॉब्लम का यूनिक सॉल्यूशन आपको बनाना पड़ता है। तो सो यू हैव टू थिंक मोर ऑन द solution, how we can build better, easy solutions for the users. Okay. Mhm. Right. Now you working in a company, so what is your daily workflow? Or if you get a negative feedback in between your workflow, so how you deal with it? वैसे नेगेटिव फीडबैक कुछ भी होता नहीं है, इज नथिंग नेगेटिव, पॉजिटिव ऐसा कुछ नहीं है। इट्स बेसिकली you thought something would work and it's not working, that's all।
तो if you put user in the center and start working according to it, then आपको कुछ problem नहीं होगा. So you start thinking like मेरा design अच्छा है, मैंने अच्छा किया. If you start thinking like that, that is when you will have a lot of problems. So आपको ना यूजर पे फोकस करना चाहिए. सो इफ एनी दैट दे आर गिविंग बिकॉज यू डिड इट लाइक दिस, वो लोग इसीलिए दे रहे हैं यू करने के से. सबका कॉमन गोल होना चाहिए, लाइक योर गोल, योर आर्टिस्ट गोल, सीईओ गोल सबका एक ही है, यूजर को बेटर प्रोडक्ट में. तो टेक दैट फीडबैक एज लाइक दे आर गिविंग टू improve it, not to deteriorate. तुम्हारा डिजाइन अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है. It is just trying to say that उसको पॉजिटिवली लेना है. You might not know something, they might know some information. जैसा कभी कभी होता है डिजाइन में, हम लोग डिजाइन बना देते हैं पूरा and we didn't have full context, इसके वजह से वो थोड़ा तुम गलत डिजाइन बना के बैठते हो. फिर then they come back and they give you better context कि ये ऐसा नहीं है, इसके वजह से इसको ऐसा करना चाहिए, ये ऐसा करना चाहिए. आप खुद एग्री करोगे. बट कुछ लोगों का कुछ चीजें सब्जेक्टिव होते हैं. फॉर एग्जांपल सब्जेक्टिव जैसा इफ यू टेक लाइक कलर इज अ वेरी सब्जेक्टिव. किसी को रेड पसंद है, किसी को ग्रीन पसंद है, किसी को व्हाइट पसंद है. ये सब्जेक्टिव है, इस पे आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो. बट यू कैन, मगर लॉजिक हमेशा होता है. जैसे एक वेबसाइट है, उसमें बाई का बटन रेड लगाया एंड एक ए बी टेस्टिंग के अंदर ग्रीन लगाया, फिर रेड वाला जरा काम किया. सो यू कैन गो टेस्ट इट एंड देन फिगर आउट द रिजल्ट्स. तब जाके आपको पता चल जाएगा कि डिसीजन ले सकते हैं. नहीं तो डेटा को देखना पड़ेगा. यू चेक आउट द डेटा, लाइक प्रीवियस हिस्ट्री डेटा, किस कौन सा अच्छा चल रहा है, व्हाट डिड नॉट वर्क. बेस्ड ऑन दैट यू कैन मेक योर डिसीजन. ऐसा. So किसी भी चीज के लिए like you should have like first of all when you're designing you should have backing for your design. क्यों तुमने ऐसा डिजाइन किया, एक डॉट लगा है तो क्यों वहां पे लगेगा, वो सर्किल में है डॉट, क्यों सर्किल में, why is it not square. ये सब क्वेश्चंस आपको खुद पूछना पड़ेगा before anybody answers, so that you have like better answers for every question they have. तो ये सब मैंने कोर्स में कवर किया है. अरे मैं ज्यादा लंबा बोल रहा हूँ क्या? नो इट्स ओके. थोड़ा ब्रॉड व्यू मिलेगा तो हमारे व्यूअर्स को भी थोड़ा अच्छा लगेगा. एक थिंक टैंक या फिर कैसे एक एक्सपीरियंस पर्सन सोचता है और उस प्रकार से ठीक हमें है. क्या हमारे अंदर बिल्डअप करना है. सो ये एक या पॉजिटिव पॉइंट उनके लिए भी हो सकता है. या ठीक है. सर अभी जो आप ऐसे कौन से रेफर करोगे फ्रेशर्स या एक्सपीरियंस को कि वो ये सब टूल्स यूज करे ताकि अ, आगे आने के बाद या फिर आगे चलने के बाद उन्हें ये टूल्स हेल्पफुल हुए एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी और अलग से अम, कुछ. अभी डिजाइन का बात हो रहा है ना, हाँ. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आप पूछ रहे हो. फिर मैं बता सकता हूँ, अगर आप प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग करना है तो पाइथन डिजाइन में है. आपको फिगर, अगर आप पावर पॉइंट यूज कर सकते हो, एमएस पेंट यूज कर सकते हो, ये टूल्स भी यूज कर सकते हैं. इतना कॉम्प्लेक्स टूल्स नहीं है, बहुत सिंपल सा टूल्स है. अगर आप पावर पॉइंट ढंग से सीख लो तो ये आप कर लोगे. ये फिग्मा सीखो. इंटरेक्शन के लिए बहुत सारे टूल्स है. मेरा प्रिंसिपल एक बहुत बड़ा टूल है एंड वेरी इंटरेक्शंस. आपको फिग्मा में भी आप बहुत सारे चीजें कर सकते हो. एक फिग्मा चीज बस है लाइक फॉर नाउ. ये भी अदरवाइज इफ यू वांट टू लाइक फिग्मा में अभी फिग्मा डाम बोल के एक नया फीचर आ गया, देन यू कैन यूज दैट डू लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करने के लिए, वो भी यूज कर सकते हो. फिग्मा इज इनफ, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए.
So, who was your inspiration in the designer field? जिसको देख के आपने कुछ सीखा या फिर आपको लगा नहीं मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए, आपका कोई रोल मॉडल? एवरी ईयर मेरा रोल मॉडल डिजाइन का चेंज होता रहता है. हर एक बंदा इज नॉट देयर. हर ईयर चेंज. सो व्हेन वी गो एंड लुक एट लाइक ड्रिबल बिहेंस ये सब वेबसाइट देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे मस्त सुपर माइंड ब्लोइंग डिजाइनर्स है वहाँ पे. उनका डिजाइन देख के लगेगा यार मैं तो कहीं पे नहीं हूँ. सो दिस इज व्हाट द फीलिंग यू गेट. तो एक साल पहले आई यूज्ड टू फॉलो दिस गाय. what is his name? If you ask me on the not on the design side, एक बंदा तो है like Steve Jobs is somebody is like extraordinary. he वो is not a design. Famous saying from Henry Ford is, so basically people, if you ask people to people what you want, they would say I need a faster horse. They would never think of a car, right? People don't know what they want. You need to observe and figure out what they want. That's why I like Steve Jobs more. जैसे उसके साथ स्टीव वॉजनिक, सॉरी स्टीव वॉजनिक ने डिजाइनर है वो, ये एप्पल का सीईओ, उसका है उसका नाम. आई एम वेरी बैड एट रिमेम्बरिंग नेम्स, so माफ करो मुझे प्लीज. सो अभी जो सिचुएशंस थी कोरोना की या फिर अलग से, तो इसमें बहुत सारे पीपल डीमोटिवेट हो गए, भले वो डिजाइनर हो या फिर अदर फील्ड से भी हो. तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसके वजह से, मतलब ऐसे क्या चेंजेस या फिर ऐसा कुछ नया करना चाहिए ताकि हमारा जो डीमोटिवेशन वाला जो पार्ट है वो एक मोटिवेशन में कन्वर्ट हो जाए? यार पहली चीज तो आप घर पे रहते हो तो एक तो आप फैमिली के साथ रह सकते हो और अच्छा खाना खा सकते हो. दैट्स द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, ये एक चीज ये है कि इससे पहले, अगर मेरा पर्सनल व्यू बताता हूँ, इससे पहले आपको सुबह सुबह उठ के फिर खाना बना के सब कुछ बना के आपको ऑफिस जाना पड़ता है. इसमें 2 घंटा चले जाता है एंड शाम को 2 घंटा निकल जाता है. फिर ऑफिस वाले कुछ बोलेंगे कि चलो पार्टी करते हैं, वहां पे टाइम निकल जाता है. और ऊपर से ऑफिस के टाइम में भी कभी भी फ्री हो तो आपको वो टाइम ऑफिस में ही स्पेंड करना पड़ता है एंड उधर इधर बात करोगे टाइम खत्म कर दीजिए. बट बिगेस्ट एडवांटेज यू हैव वर्किंग फ्रॉम होम, और घर पे रह के कुछ करने से आपके पास बहुत टाइम है. तो वो टाइम को टाइम पास मत करो. उसको आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो. बहुत सारी चीजें जैसा मैंने क्या किया, जब कोरोना आते ही मैंने मेरा कोर्स बना दिया. कोर्स बना के कोर्स बेचना शुरू किया. ठीक है. तो फिर वो एक चीज बहुत, देन सो यू हैव लॉट ऑफ टाइम टू यूज. मैंने कोर्स बनाया फिर कोर्स बेचना शुरू किया. दैट वर्कड आउट वेल. फिर क्विक स्टार्ट किया उसी समय में. आई वाज डूइंग लाइक आई हैव लॉट ऑफ टाइम इन हैंड, आई एम यूजिंग इट प्रॉपरली. तो ऑफिस जाके आ जाते हो तो आप टायर्ड हो जाते हो, टीवी के सामने बैठो फिर सो जाओ. फिर सुबह उठो फिर वही घंटा चलता है. वीकेंड पे आते हैं, अरे वीकेंड आ गया अब मजा करो फिर जाके बाहर. तो ये सब चीजें खत्म हो गई क्योंकि घर पे ही रहते हो तो कुछ ज्यादा आफ्टरनून में 1 घंटा रेस्ट ले लो खाना खा के, बहुत कुछ कर सकते हो आप. तो इसको डिमोटिवेशन ऐसा कुछ मत सोचो. इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एक्सप्लोर योरसेल्फ एंड लर्न सो मेनी थिंग्स. आपके पास दिन में 5-6 घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा है तो उसको इस्तेमाल ढंग से करोगे तो यू कैन बिकम ए बिलियनियर मैन. ढंग से करोगे तो. आप इस्तेमाल नहीं करोगे, नेटफ्लिक्स में बैठ के नेटफ्लिक्स अमेजोन प्राइम देखते रहोगे, मूवी देखते रहोगे, ऐसे टाइम पास हो जाएगा. तो ऐसे चीजें, आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी है. हाँ. और ऑफिस वालों के लिए स्पेसिफिकली अगर आप जाओ तो यू हैव टू स्पेंड. अगर सिटी में रहते हो तो आपको पैसा स्पेंड करना पड़ेगा रेंट देने के लिए. हाँ. तो ऐसा बहुत सारे पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में आए हैं
if you would have used it properly you would have become something. और ये एक पूरा रेवोल्यूशन है, एडटेक का पूरा चेंज ही हो गया है दुनिया। हाँ इससे पहले right. सब स्कूल स्कूल बोलते थे, अब पूरा सब कुछ ऑनलाइन हो गया एडटेक। इतना देखो अभी अपन ये कर रहे तो आप इससे पहले ऐसा नहीं सोचते थे, आप बोलते थे कि सर आपको आना पड़ेगा, फिर आके आप हमारे पास इंटरव्यू दो, ये सब खत्म हो गया। बड़े बड़े लोग हम्म ट्रैवल ट्रैवल खत्म हो गया। अब ट्रैवल में right. कितना पैसा बचता है, लाइक फॉरेन जाना पड़ता है लोगों को, मीटिंग क्लाइंट के मीटिंग करने की, ये सब खत्म हो गया, डन। तो इतना पैसा right. बचा है। वैसा ऑफ कोर्स नेगेटिव साइड भी है, कुछ इंडस्ट्रीज खत्म हो गया है ऐसा, लाइक फ्यू इंडस्ट्रीज विच आर गॉन, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है, बिजनेसेस बंद हो गए थे। रियल एस्टेट तो गया ही पूरा, रियल एस्टेट खत्म हो गया था थोड़े टाइम तक। फिर ऐसा लाइक बिजनेसेस को बहुत सारा लॉस आया है। बट एक नए स्टार्टअप जब कोरोना में बहुत सारे स्टार्टअप स्टार्ट हुए, तो उसकी वजह से जितनी अपॉर्चुनिटीज गई थी मैक्सिमम 50% आई थिंक सो कवर अप हो चुकी है, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी तो किसी का गया नहीं यार, कुछ 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 बहुत कम कंपनीज ने, एक्चुअली कंपनीज का ना कैपेसिटी बढ़ गया है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं, इंटरनेट बिल नहीं, कुछ भी नहीं है उनको, इज नथिंग। बहुत कुछ सेविंग हुआ है, एंड if they would have reinvested that amount properly, तो वो मल्टीपल और 1000 लोगों को हायर कर सकते हैं कुछ कंपनीज तो आई आई मुझे तो बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि अरे जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब मिल रहा है, कोरोना की वजह से जॉब नहीं मिल रहा। अरे दैट इज ऑल बुलशिट। मैं बोलता हूँ right. अरे ऊपर से अपॉर्चुनिटी बढ़ गया आपको। हाँ, हम्म, बिकॉज मैंने भी कोरोना में ये स्टार्ट किया था, वर्कआउट कम्युनिटी ऐसा, और हम्म, मैंने एक टीम लेके स्टार्ट किया था। तो एक्चुअली मोटो हम्म, यही था कि लर्निंग इससे ज्यादा होने वाली है हमारी, क्योंकि हम जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना ज्यादा हम्म, हमें लर्न करने को मिलेगा। सो हम्म, दैट वाज आवर पॉइंट, नथिंग एल्स, हम्म। बिकॉज सिर्फ मनी। एक और चीज ये है कि डिजाइन से असाइड थोड़ा सा बात करेंगे तो एवेंचुअली ये थोड़ा ज्ञान वाली बात होगी, बट चलिए। स्टिल आई जस्ट हाँ यस, मैं बताऊंगा आपको। नो सर, वी आर देखो यार, ऑलवेज वेलकम फॉर इट। एवेंचुअली आपको आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, बस इतना ही, राइट? हम्म आपको कितना चाहिए महीने का? लाइक आप अभी लाइक 10,000 कमा रहे हो तो आपको 20,000 चाहिए, 20 कमा रहे हो तो 40 चाहिए, 40 कमा रहे हो तो 50, 80 चाहिए, राइट? ऐसा ही होता है पैसा। तो बट एट द एंड ऑफ द डे यू जस्ट नीड मनी। आप क्या काम कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, आपको कुछ ढंग का फर्क नहीं पड़ता है, यस नीड टू मेक मनी। तो उसका आपको सोर्स देखना है, कहाँ पे पैसा है। मनी इज ऑल लाइक डबलिंग इट, लाइक देखो आप, इफ यू डू इट राइट, आप फटाफट ऐसे बिलियनर बन सकते हैं। मैं बताता हूँ, देखो आप आपके पास लेट अस से यू हैव 1 लाख। 1 लाख तो नहीं होता है किसी के पास, बट ठीक है, तो 1,000 रुपए का ले लेते हैं, आपके पास 1,000 रुपए। आप ऐसा सोर्स ढूंढो, 1,000 रुपए को 2,000 बनाओ, ठीक है? एक 1,000 को 2,000 बनाओ, एक दो महीने में बना सकते हो इफ यू हाँ डू इट राइट। प्रॉपरली। 1,000 to 2,000, 2,000 4 तो 4,000, 4,000 8,000, 8,000 to 16,000, 16 to 16, 32, 32 to 64, 64 to 128, 1,28,000, 2,00,000, 54, 56,000, फिर हो गया 250, तो इट्स गो आफ्टर टू 6 फाइव। लैक्स 5 पॉइंट सम हो गया, हाँ राइट? यस। तो आप जो भी आपके पास पैसा है उसको आप डबल करना सीखोगे। हाँ आप 10, इफ यू डू 10 टाइम्स डबल ऑफ योर 1,000 रुपीज, यू हम्म विल यू विल हैव 5 lakhs। तो वो 5 lakhs को अब लेते हैं, लेट अस डबल इट। हाँ 5 हो हाँ गया, 10, 10 हो गया, 20, 20 हो गया, तो 40, 40 हो गया, 80, 80 हो गया, हाँ यस। 160, 160 हो गया, 240, 236, 160 तो हो गया, 320, 320, राइट? 320 हो गया, 640। सो आपके पास 640 करोड़ है। हाँ तो बस यस। आपको
ढंग से आपका पैसा को डबल करना सीखना चाहिए। अब वो कैसा करोगे, इसका सोर्स ढूंढो। बहुत सारे चीजें हैं ऐसा करने के लिए। ठीक है। तो सिंपल कि आपको पैसा चाहिए, आप कैसा भी कमाओ उसको, एंड एक ही थंब रूल रखो कि मेरे पास जो पैसा है उसको एक टाइम लिमिट लगो, उसके अंदर डबल करना, बस उतना ही है। टाइम लिमिट आपको इज ज्यादा नेसेसरी. कैपिटल की आपको ज्यादा ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं। Right. So now I come back to our this one. डिजाइन के लिए So चलो। design part. So according to you, which design is trending now? मतलब ऐसा कौन सा सेक्टर है जहाँ पे डिजाइन्स के ज्यादा एकदम डिमांड बढ़ चुकी है, या फिर ऐसा कुछ एक ट्रेंड निकला है न्यू इससे? यार मेरे को इतना ज्यादा पता नहीं है, हाँ. बट देर इज वन एरिया यू माइट वांट टू कंसंट्रेट, रोबोटिक्स। रोबोटिक्स भी एक तरीके का डिजाइन ही है। इट्स लाइक यू हैव टू डिजाइन समथिंग है तभी तुमको प्रोडक्ट बन के आएगा। सो रोबोटिक्स एक फ्यूचरिस्टिक चीज है। तो अगर ऐसा कुछ एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, अगर कुछ है कि नहीं उसके लिए कोर्सेज तो जरूर होंगे, बट इफ यू डू दैट, लर्न दैट, फिर आपको और अच्छा बहुत फ्यूचर रहेगा। सो इंटरफेस एंड एक्सपीरियंस डिजाइन तो रहेगा डेफिनेटली थोड़े टाइम, लाइक जब तक स्क्रीन है तब तक है। तो स्क्रीन तो कभी नहीं जाएंगे। स्क्रीन के बाद क्या आएगा अभी आगे जाके थोड़े टाइम के बाद, वो वी आर ए आर है, ये सब अलग है। देर ऑल्सो देर इज इंटरफेस, इंटरफेस एक्सपीरियंस सब कुछ है। डिजाइन तो यूआई यूएक्स तो हर जगह है, हमेशा है। तो नया ट्रेन आपको ज्यादा न्यूज देखना पड़ेगा। जब तक राइट. न्यूज देखते रहेंगे आपको अपॉर्चुनिटीज पता चलेंगे। जो हाँ जी. बहुत सी अपना एक प्रॉब्लम क्या है, इफ यू आर आस्किंग मी अबाउट डिजाइन की डिजाइन, ठीक है, लाइक किस ट्रेन निकला है, ये सब छोटे चीजें हैं, थोड़ा बड़ा सोचो। मैं बताता हूँ बड़ा कैसे। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताओ, आपको आपका फेवरेट प्लेस क्या है, आपको कहाँ जाना है, अगर कहीं पे जाना है, इफ यू हैव टू गो समवेयर, इफ यू हैव फ्रीडम टू गो समवेयर, वेयर विल यू गो? I will go to my hometown. It's देखो। it's a because हम्म। there is nature. जो नेचर या फिर जो थिंग्स वहाँ मिलते हैं वो मेरे को बाकी जगह मिल सकते हैं, लेकिन उस अमाउंट में या फिर वो जो सुकून बोलते हैं ना, उस सुकून नहीं मिल पाएगा. बिकॉज इट्स दैट व्हाट वी कॉल एज मिट्टी की खुशबू, दैट या farms and that what you can water there or that you ठीक है, know. दिस थिंग इज लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट पर्सनल काइंड ऑफ। अगर हाँ, पर्सन. और थोड़ा अलग सोचो, इफ यू हैव टू थिंक अबाउट लाइक कहीं और, लाइक इट्स नॉट लाइक तुमको थोड़ा तुम्हारा फ्यूचर कैरियर जैसा सोचो, कहाँ जाना है, क्या करना है तुमको, ऐसा सोचो। कैन यू टेल मी? Career is to open an institute in the Mumbai or a Pune place where I can provide a valuable courses, not only just free, but in some amount that can affordable to everyone. And the course content should be it not should be that that I am doing that some part and other parts are missing out. No, I will sum up into one course, and after that course, you will be the most valuable person as that after that doing that course. So I have to create it. ठीक है, ग्रेट। ठीक है, आई लाइक योर आइडिया, तुम्हारे लेवल पे तुम सोच रहे हो, राइट? Right. मैं मेरा बताता हूँ Okay. मुझे कहाँ Yes. जाना है। मुझे मार्स जाना है। Okay. मार्स। Mars. Okay. Right. Yeah. ऊपर से एक और प्लैनेट है टाइटन नाम के, वो अर्थ जैसा ही है, मुझे वहां पे जाना है, ये मेरा टारगेट है। तो So that. अपना सोच क्या है, लिमिटेड है। जैसा आप डिजाइन में क्या होता है, आप एक बॉक्स बनाते हो, जैसा ये एक स्क्रीन है, राइट? स्क्रीन साइज इज वेरी लिमिटेड, आपका स्क्रीन साइज लिमिटेड है, तो आप उसी के अंदर डिजाइन करने के लिए सोचोगे।
राइट। हम्म, और तो वो एक लिमिटेशन हम खुद अपने दिमाग में एक बॉक्स बना के रखे है, यहाँ तक ही जा सकते हैं हम, यहाँ पे अरे यहाँ पे रीच हो गया था बस, राइट। बट if you look at on the flip side, you have to think bigger than your dream. बहुत बड़ा बड़ा सोचना चाहिए तुम्हारे। ड्रीम शुड बी लाइक आउट ऑफ द यूनिवर्स। हम्म। तो मेरा ड्रीम ऐसा है, मुझे मार्स में जाना है, टाइटन वो में जाना आउट ऑफ अ है। बॉक्स वाली आउट सोचना ऑफ द चाहिए। बॉक्स है। तो आपको लाइक लोग आपको खींच के नीचे, लाइक पकड़ के नीचे खींचेंगे, बोलेंगे कि यार तुम लाइक, अरे तुम्हारा सेंटर के बारे में बताओगे तो यार इतना कहाँ हो पाएगा यार, बहुत इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ये सब चीजें फलाना ढिकाना बोलेंगे आपको। थोड़े टाइम के बाद आपको अभी जॉब नहीं मिला ना, आपको जॉब मिला है? नहीं नो नो मिला। नो, आई एम नॉट। अभी आपको जॉब मिलेगा, हाँ। मिलने के बाद आपका करियर खत्म हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। एक बार जॉब मिल गया तो अब जॉब में पैसे आएंगे, पैसे आने के बाद अरे एक बार पैसा आ गया, देन यू स्टार्ट टेकिंग दैट मनी, ईएमआई लोगे, लोन लोगे, वो करोगे, फिर खत्म हो गया तुम्हारा। वो लोन बढ़ते बढ़ते तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाती। तो बेसिकली तो तुम्हारा टारगेट ये है कि अभी तुम्हारा टारगेट क्या है, जॉब जॉब, जॉब, राइट। हाँ राइट। एक बार उसमें जाओगे तो 10 साल डिले हो जाएगा तुम्हारा, वो जो ड्रीम इंस्टीट्यूट का बनाने वाले हाँ, यस। ड्रीम है। 10-20 साल डिले हो जाए तब तक ये इंस्टीट्यूट का कोई देयर इज नो यूज। अगर तुम खोलोगे 1 साल के अंदर, अभी 1-2 साल के अंदर खोलोगे तो देन इट इज यूजफुल। नहीं तो कोई काम का नहीं, 10-20 साल में वो कहाँ पे क्या रहेगा किसी को पता नहीं। क्योंकि एवरी डे देर इज सम चेंज, सो वी कैंट। यस, सो ऐसा है। सो अभी एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर हो, तो आपके पास हम्म। जब डिजाइन आते हैं या फिर आप जब डिजाइन बनाते हो, तो आपका सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है? पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे ज्यादा तो आपको प्रॉब्लम समझना जरूरी है कि आप ओके। से डिजाइन इज अबाउट सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन कैसे बना रहे हैं। तो आपको सबसे पहला स्टेप ये है, प्रॉब्लम क्या है वो समझना जरूरी है। नहीं, अगर प्रॉब्लम नहीं समझोगे तो सॉल्यूशन गलत निकलेगा, राइट। राइट, हाँ। यस। सब वो प्रॉब्लम कैसे समझोगे, एक तो अगर कंपनी में हो तो आपका प्रोडक्ट मैनेजर समझाएगा कि आपका उनका प्रॉब्लम, स्टार्टअप्स में सीईओ समझाएगा कि प्रॉब्लम क्या है, राइट। बट यूएक्स में अगर और डीप जाना है तो आपको प्रॉब्लम पता करने के लिए एक वन ऑफ द वेज यूजर से बात करो, फिर पता चलेगा। तो फिर वो एक चीज है, उसके बाद यूजर्स को ऑब्जर्व करो, तब पता चलेगा, ऐसा। सो you just have to find the right problem, then only you will build the right solution. So we have to think like a user. What should user like or dislike? Yeah, so people say like we have, like it is a saying that you have to walk in the user's shoes. तो तभी पता चलेगा कि उसको कैसा फील कर रहा है। Okay, finally we have come at the end of the point. So सबसे लास्ट और कॉमन क्वेश्चन ये रहता है लास्ट में कि अगर मैं फ्रेशर हूँ, स्टूडेंट्स हूँ या फिर डिजाइनर हूँ, तो आपका लास्ट मैसेज उनको क्या रहेगा? टाइम वेस्ट मत करो। बस इतना ही राइट। है। टाइम वेस्ट मत करो, बस इतना ही है। हर हर समय आपको, सी फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट योर गोल। तुमको लाइक गोल तो हमेशा बदलता रहता है। आपको एक लॉन्ग टर्म गोल रखना है और एक शॉर्ट टर्म गोल रखना है। नाउ व्हेन समटाइम्स लाइक 1 साल पहले, 2-3 साल पहले अगर तुम मुझे पूछोगे तुम्हारा गोल क्या है, मुझे क्या है यार, मुझे एक अच्छा कंपनी बनाना है, बहुत सारे लोगों को जॉब्स देना है, ये मेरा गोल था। अब मेरा गोल चेंज हो गया, वो ठीक है, वो छोड़ो। हाँ गोल तो छोड़ो। अभी तो मेरा गोल बन गया कि मुझे ज्यादा से ज्यादा टाइम फ्री चाहिए, तो वो मेरा हाँ। पहला गोल बन गया है। राइट। कंपनी लगाने को तो बाद, जितना टाइम फ्री, मतलब जॉब छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, फ्री रहना है मुझे, तब जाके दिमाग चलेगा ना। हाँ। तुम तब व्हेन यू विल बिकम फ्री,
when your finances are free, मतलब आपके पास पैसा है, हर महीना तुम कुछ भी मत करो फिर भी पैसा है, तब जाके तुम फ्री हो जाते हो। हाँ तब टाइम को यूज करके तुम कुछ भी कर सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट यू अचीव। टाइम इज द प्रॉब्लम, यू हैव टू मेक टाइम। तो जब टाइम है उसको ढंग से इस्तेमाल करो, टाइम वेस्ट मत करो। हाँ अगर आपको एक गोल है, वो गोल को कैसा अचीव कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म गोल लॉन्ग टर्म गोल्स बताए ना। शॉर्ट टर्म में अगर सो ए 5 साल का गोल है तो यू डिवाइड दैट इनटू 5 years। तो एक एक साल को डिवाइड करो, फिर एक साल को फिर से 12 महीने में डिवाइड करो, फिर बोलो कि 5 साल में मुझे यहाँ पे रहना है, तो इसके लिए मुझे आज से क्या काम करना चाहिए, इस सेकंड के से क्या काम करना चाहिए, वो सोचना पड़ेगा। तो आपको अगर वो सेंटर गोल है, आपको 5 साल के बाद जो इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी उसके बारे में अभी से सोचना पड़ेगा। तो 5 साल के बाद अगर तुझे लाइक 30-40 लाख लगेंगे एक सेंटर, मैंने तो बहुत कम बोल दिया, 1 करोड़ चाहिए तुमको 5 साल के बाद, 1 करोड़ चाहिए। तो आज से शुरू करो, 5 साल के बाद तुम्हारे पास 1 करोड़ कैसा होगा, हाँ पैसा ही प्लान कर्म हाँ आता है। प्लानिंग, वो प्लानिंग कैसा कमाओगे बताओ मुझे, प्लानिंग है तुम्हारे पास, बोलो, है क्या हाँ प्लानिंग? प्लानिंग तो है सर, लेकिन इट शुड नॉट बी पब्लिक हाँ एज वेल। सो उसकी वजह से तो अब तो एग्जैक्टली, पब्लिक नहीं ठीक कर है। सकते, क्योंकि because if you public once other हाँ, alls get just they will this नहीं नहीं, मैं बस एग्जाम्पल हाँ के ऐसे जरिए हाँ बोल रहा क्या हूँ। या नहीं ठीक है। है, अगर आपके पास प्लान है तो ठीक है, हाँ तो बस वो रीच करने के लिए आज से आपको काम करना पड़ेगा। वो कैसा करोगे तो आप सोचो, तो उसके हम्म, हिसाब से कितना मेहनत लगेगी। इट्स ऑल लॉजिक एंड कैलकुलेशन, राइट? आपको right. कैलकुलेट ढंग से करना पड़ेगा। अगर 5 साल में 1 करोड़ कमाना है, 1 करोड़ कमा के इंस्टीट्यूट खोलना है तुझे, आज तेरे पास कम से कम लाइक अकॉर्डिंग टू दैट इन्फ्लेशन, वो सब रेट्स, वो सब कैलकुलेशन देते हैं, उसके हिसाब से हम्म, आपके पास अगर आज 10 लाख है, एंड इफ यू डोंट लूज एनीथिंग, हर साल अगर 10% इंटरेस्ट आया तब भी तुमको, एक बैंक इंटरेस्ट तो 6% ही है, आपको हाँ, कैसे 10 लाख का 60,000 इंटू 6 ईयर्स, 6 लाख, मैक्सिमम 20 लाख पहुंचोगे, हम्म, yeah, मैक्सिमम 20 लाख। maximum 20 6 लाख से ज्यादा बोल दिया मैंने, उससे ज्यादा नहीं percent। पहुंचोगे, फिर कैसा कैसा करोगे? तो फिर क्या करोगे, इसको मेहनत करना पड़ेगा। आज मुझे इतना अचीव करना है, इस महीना अचीव करना चाहिए इतना, तभी जाके उसके लिए क्या करूंगा मैं, थिंक अबाउट इट। जितना ज्यादा आप एफर्ट्स दोगे या फिर एफर्ट्स लोगे उसके ऊपर उतना ज्यादा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आई थिंक लाइक दैट। ऑब्वियसली, एफर्ट, एफर्ट कोई भी डाल सकता है, एफर्ट शुड बी इन द राइट डायरेक्शन। जी, तुमको अचीव कुछ करना है मगर एफर्ट कहीं और डाल रहे, राइट? योर राइट एफर्ट राइट, तुमको डिजाइन सीखना है मगर कोडिंग में एफर्ट डाल रहे हो, क्यों? नो हाँ नो पॉइंट। हाँ यस Effort is important, and effort in right direction is more important. That's it. So we have come at the end. Thank you so much sir for joining to us. बहुत कुछ सीखने के लिए मिला Thank you, आपसे। sir. और Yes. अदर व्यूअर्स को मैं बता दूं कि सर ने जो भी लिंक्स प्रोवाइड किए या फिर उनका जो लिंक्डइन आईडी है या फिर आपको उनसे डायरेक्ट कुछ इंटरेक्शन करना है, सो आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड विल सी मोर पीपल से हम इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे या फिर हमारे चैनल्स पे लेके आएंगे, ताकि आपको और मोटिवेशंस या फिर और एक ऐसी स्ट्रेंथ मिल सके ताकि आप अपने फ्यूचर्स में आगे बढ़ सके।